कम्युनिकेट विद पेशेंट विद एम्पैथी एथिक्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग यूज। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इससे लाइन से? एथिकली, एम्पैथी, थोड़ा सा पेशेंट के साथ थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल करते हुए रखना है ना। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ Are you a nurse? Miss Miller, I am a nurse. Can you get me some pain medication? That other nurse last night was just awful. She didn't do, I only talked to her once at the beginning of the shift, and I'm really, really uncomfortable. And I just don't feel good at all. Is there any way you can give me some relief? Well, first off, I need to do a complete assessment before. How long will that take? 4 minutes. बातें नहीं करनी है। I'm very busy. And, you know, I'm very uncomfortable. Is there any way? She didn't do anything for me last night. All right. Well, you know, on the scale of 1 to 10, 10 being the worst pain you ever had, 1 being no pain, or 0 being no pain, where's your pain? 8 or 9, maybe going more. It's just, I haven't had anything for give me any relief. I haven't had any sleep last night. I kept bugging the buzzer, and she just wouldn't come in. Well, can you do anything for me? Let me check your medication orders. Can you please hurry? Well, you know, you're not the medication I have today, so I will do it as fast as I can do it. All right, I'll be back. If not, I'm going to talk to your supervisor. Okay. Well, I don't think that really is necessary. It may be that. Okay. Well, I'm going to check right now for your payment. I'll be back. अभी जो डॉक्टर कर रही थी, ठीक कर रही थी, गलत कर रही थी। ये डॉक्टर गलत कर रही थी। देखा नहीं वो ठीक कर रही है, वो अच्छे से सुन रही हो। बातें नहीं करनी, आगे बैठ जाओ चुपचाप। And also right after surgery, they're thinking on receiving room, we'll make sure that you have to do it. And if you're going to have to support, we'll make sure that you have everything. Well, one more we love you about, you know, they take a couple of days and go to the doctor and we'll see them and then he will be sharing all with you. I just kind of worry about it. Sure. It's not a easy thing right now. I know it's going with it. I don't want to bother anyone. You know, hang in there, and I'll be here today to care for you, and I'm on tomorrow as well. So I'll be sure to express to the nurse that should change, that you have some concerns about this, if you're saying those things. You know, I'm not sure. You know, she was rude, she was rough. I just wanted to put a picture of her. She didn't come back when she did, she stuck her head in and left. And she just, I don't know what she thought about. So it felt like oh, no, I wasn't cared for at all. I mean, she came in and she did a really quick kind of up and down thing, and it was really rough. And then I asked her for medication, and she didn't bring it back, and she stuck her head in and said, "Glad everything's okay," and went back out again. And I yelled for her, and I buzzed for her, and she never came back at all. I mean, and I couldn't sleep, and it was really noisy. There was a bunch of noise down the hall, and, you know, she was just awful. I mean, it was terrible. She's one of the worst nurses I've ever known. I'm sure when they were working, you will be
वो सही कर रही थी, गलत कर रही थी? शी वॉज लिसनिंग टू हर। उसके साथ थोड़ा एम्पैथी से आगे आ जाओ, यहाँ पे नहीं मिल। और जो जिसकी वो बात कर रही थी कि वो जो नाइट में मेरे साथ थी, शी वॉज नॉट गुड एट ऑल, वो नहीं सुन रही थी, दैट वॉज रॉन्ग। कम्युनिकेशन क्या होता है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हु विल डिफाइन इट? मैनुअल्स तुम्हारे हाथ में, ओपन 130, पेज नंबर 130। उसको देख के बता दो मुझे डेफिनेशन। कौन रीड करेगा? याद तो तुम लोगों को होगी नहीं। याद है किसी को डेफिनेशन? जो खड़ा होके बोल दे बिना देखे। सिंपल सा टॉपिक है, कौन पढ़ेगा जाके, कौन खोलेगा? वायवा होता है इसी पे, तुम्हारा पता है ना। आ जाओ, बहुत जगह है यहाँ पे, वो पूरी बेंच खाली है। कौन खड़ा होके रीड कर रहा है? कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? उसकी फर्स्ट लाइन, उसकी डेफिनेशन है। क्वाइट, एवरीवन क्वाइट, लिसन टू हर। हाँ बोलो। Communication is the process for effective communication of sharing information or messages which ultimately leads to common understanding. It is derived from the Latin term communis meaning common. बस ठीक है, sit down, sit down। मतलब क्या है? शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। जो तुम बोल रहे हो वो समझ आना चाहिए। ये मैं बार बार समझाऊंगी नहीं, ये डेफिनेशन याद कर लेना, पूछते हैं, ठीक है? और अपन ने क्या देखे थे? देयर आर 7 C's। 7 C कौन बताएगा मुझे कम्युनिकेशन के? किसी को याद है? 7 C's में से 2-3 चीजें तो याद होगी। कंप्लीट, कंक्रीट, करेक्ट, क्लियर, कंसाइज। गुड गुड, मतलब समझ में तो आया था, समझ में तो आया था, ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी क्या है? द पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड तुम क्या बोल रहे हो, उसको अच्छे से, उसके साथ थोड़ी एम्पैथी दिखाते हुए, व्हाट दैट डॉक्टर वाज डूइंग, वो अच्छे से सुन रही थी उसको, ठीक है। और वो जो कंप्लेन कर रही थी कि भाई नाइट में शी वाज नॉट लिसनिंग टू मी, मेरे पे गेट बंद करके चली गई, एंड शी वाज वेरी रूड, वो जो भी उसको बता रही है वो उसको समझ रही है, एंड शी वाज ट्राइंग कि हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और जो वो अपनी कंप्लेन बता रही है कि मुझे ये पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसको समझ रही है, उसको सुन रही है। एंड आफ्टर दैट वो बता रही है भाई मैं तुम्हारा ये एग्जामिनेशन करूंगी, ये ट्रीटमेंट दूंगी। शी वॉज मेकिंग हर अंडरस्टैंड जो वो डॉक्टर जो पेशेंट को बता रहा है, तो वो पेशेंट को समझ आना चाहिए, ताकि उसी से क्या होगा, पेशेंट तब लेगा अच्छे से, ठीक है। पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होगा, डॉक्टर जो अपनी ट्रीटमेंट दे रहा है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेगा पेशेंट, और डॉक्टर का ट्रीटमेंट का फिर रिजल्ट भी बेटर आएगा इफ पेशेंट अंडरस्टैंड्स इट प्रॉपरली, ठीक है। तो पॉइंट्स कंसिडरेशन के क्या है? बेसिकली यू हैव टू नो व्हाट द पेशेंट इलनेस इज, वो कब अच्छे से पता पड़ेगा? व्हेन यू लिसन टू द पेशेंट, ठीक है। और गैदर द इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर वो उससे वापस क्रॉस क्वेश्चन करो, उससे कंफर्म करो, ठीक है, जो वो बता रहा है, यू हैव टू कंफर्म इट बाय हिम। आगे ही आगे आना, 2 जने जो आ रहे हैं फिर पहले फर्स्ट 2 जो आ रहे हैं आगे ही आगे आएंगे, ठीक है। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, बी अवेयर ऑफ द पेशेंट्स बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट बॉडी लैंग्वेज। अच्छा हमने वो भी पढ़े थे ना, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से थे? वर्बल कितना % है? पैरावर्बल, पैरावर्बल में क्या क्या आ गया? पिच, टोन, है ना। मैनुअल्स खुली हुई है, देख के बोल दो नहीं याद है तो। और नॉन वर्बल में 55%, उसमें बेसिकली क्या आ रहा है? बॉडी लैंग्वेज, ये सब है ना। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ पेशेंट्स बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल मैसेजेस, ये 55% काउंट करते हैं, ठीक है। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, वो भी तुम्हारे नॉन वर्बल के अंदर आता है। बैठ के बातें नहीं करनी है, मैं 5 मिनट में फ्री कर दूंगी अगर तुम लोग चुप रहोगे तो। मुझे पता है ऑलरेडी
पूरा लेवल खत्म हो चुका है आज सबका। ठीक है, तो टेक्निक्स क्या है टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मेन टेक्निक्स क्या है? ये तुम्हारे उसके अंदर बहुत अच्छे से पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 मेन पॉइंट्स के अंदर सब डिवाइड किया हुआ है। पहले क्या है? डॉक्टर पेशेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके अंदर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पेशेंट को सुनना है और उसमें अच्छे से पॉइंट्स दिए हुए, वो पॉइंट्स को रीड करो एक जना खड़े होके। कौन रीड कर रहा है? कोई भी? रोल नंबर 77 रोल नंबर। डॉक्टर पेशेंट इंटरपर्सनल स्किल्स वाले रीड करना फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीटिंग पेशेंट, पढ़ते active listening and maintaining eye contact during patient complaint, empathy, respect, interest, warmth and support, हाँ, language, non-verbal communication, collaborative relationship, using the initiative। बैठ जाओ। समझ में आया इन पॉइंट्स में? किसी को कोई डाउट? इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स, इसमें क्या होना चाहिए? तुम्हें इंफॉर्मेशन जो पेशेंट दे रहा है वो अच्छे से पता पड़नी चाहिए। डॉक्टर को जो पेशेंट बता रहा है मेरी ये प्रॉब्लम है, वो उसको समझ में आनी चाहिए। तो उसके मेन कौन से पॉइंट्स है? कौन रीड कर रहा है? 54 रोल नंबर 54 है, करो रीड सारे पॉइंट्स। क्वाइट हाँ, हमारे फ्रेंड्स बातें बहुत करते हैं ना, थोड़ा जोर से बोलो। Silence, interruption and facilitation when needed. Clarify the information given by the patient. Explain explanations to patient questions. Sequence of events. Directing the flow of information and summarizing. इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? ये पढ़ रही थी, सबने देखे हैं पॉइंट साथ साथ में? इसके आगे जो ब्लैक टी शर्ट बैठा है, हाँ, यू इंफॉर्मेशन गिविंग स्किल्स एंड पेशेंट एजुकेशन रीड करो। हाँ हाँ, तुम रीड इट। हाँ, रीड इट। जो 3rd पॉइंट के नीचे simple information, diagnosis, explanation about diagnosis and disease, put important things first, use repetition, categorizing information to reduce complexity, using tools, motivating patient adherence to treatment plan, summarize। क्या कर रहे हैं अपन इसके अंदर? इंफॉर्मेशन गिविंग स्किल्स कि जो हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो तुम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो, वो पेशेंट को समझ आनी चाहिए अच्छे से। यू हैव टू टेल हिम, अच्छे से समझाओगे उसको, उसका कोई डाउट है तो पूछोगे, उसको मेन पॉइंट्स बताओगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। पेशेंट को अच्छे से पता होना चाहिए, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं, कुछ है तो वो उसको बताओ पहले से। एम्पैथी में क्या है? कुछ स्पेशल पेशेंट्स हैं उनका अच्छे से ध्यान रखो। एल्डरली, टर्मिनली इल है जो, ठीक है, कोई एड्स का पेशेंट है, मेंटली इल है या चिल्ड्रन है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम पर्सनली। उनका थोड़ा सा स्पेशल उन पे अपने को ध्यान देना पड़ता है। इफ एनी वन ऑफ यू जो भी क्लिनिकल साइड में जाएंगे, तुम अपने आप देखोगे कोई एल्डरली आ रहा है, तुम्हारा अपने आप रिस्पॉन्स उसकी तरफ चेंज हो जाता है कि हाँ, इसको मैं अच्छे से ये समझ जाए मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ढंग से 5 मिनट इस पे ज़्यादा दे के बता दूंगा। कोई बच्चा है तो उस पर लगता है कि यार ये ले दवाई जो ले रहे हैं, तो इनको इसके पेरेंट्स को अच्छे से समझा दो। जो स्पेशल जो टर्मिनली इल है, उस पर ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम, तुम्हारा ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा, राइट। कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल्स में क्या है कि पेशेंट रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, जो उसके राइट्स हैं, जो उसके कंसेंट हैं, अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलेफिसेंस क्या होता है? वी डोंट हैव टू हार्म द पेशेंट, ठीक है। बेनिफिशिएंट क्या होता है? बेस्ट इंटरेस्ट, पेशेंट के लिए बेस्ट हो, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट शुड बी बेस्ट फॉर द पेशेंट, जो भी पेशेंट की कंडीशन है उसके लिए कंफर्टेबल हो। जस्टिस, ट्रीट ऑल पेशेंट्स इक्वली, ठीक है। एंड देन इट्स यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। ये चेकलिस्ट है, अपन ने ये सेम चेकलिस्ट उसके अंदर भी देखी थी, ड्रग थेरेपी वाले के अंदर, है ना। यू हैव टू बी सॉफ्ट, योर लैंग्वेज शुड बी गुड, यू हैव टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड, अवॉइड द मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये सारे पॉइंट्स देखे थे हमने लास्ट टाइम। लास्ट में तुम 3-4 मेन पॉइंट्स बता दोगे। देन बिफोर द पेशेंट लीव,
encourage him or her to speak back what all she has understood, ताकि तुम्हें पता पड़े जो तुमने बताया है वो समझ में आ गया उसको। और communication regarding medication ये हमने देख लिया था। ये केस वगैरह छोड़ो।